اچھا، ہماری آج کی جو کلاس ہے وہ ہے ٹیسٹ فیز کے بارے میں، جو کہ سی ایس 619 کا ہے. اور اس میں جو بھی ہم نے ٹیسٹ فیز بنایا تھا اس کی کوڈنگ کو میں ایکسپلین کروں گا. اور آئی ہوپ کہ اس سے پہلے جو میں نے آپ کو ویڈیو لیکچر بھیجا تھا جس کے اندر ایچ ٹی ایم ایل، پی ایچ پی، سی ایس ایس اور ایس کیو ایل کی بیسکس بتائی تھیں، وہ آپ نے کور کر لی ہوں گی. سو وداؤٹ فردر ڈیو ہم اسٹارٹ کر لیتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا زیمپ کے بارے میں بتا دوں کہ زیمپ جو ہے وہ کیا چیز ہے. ایون دو کہ جو لاسٹ ویڈیو لیکچر ہے اس کے اندر بھی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا، لیکن مزید میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طرح سے جو ہے وہ زیمپ چلتا ہے یا زیمپ نے کس طرح سے کام کرنا ہوتا ہے. اچھا، ایک سیکنڈ. ہمارے پاس جو زیمپ والا سافٹ ویئر ہے وہ جب آپ انسٹال کر لیتے ہو تو وہ آپ کے پاس بیسیکلی انسٹال ہوتا ہے سی ڈرائیو کے اندر. تو آپ سی ڈرائیو میں جاؤ گے، وہاں پہ یہ زیمپ والا ایک فولڈر بنا ہوا ہوگا. آپ نے اس فولڈر کو اوپن کرنا ہے. اس کے اندر آپ کے پاس ملٹیپل فولڈرز ہوں گے، لیکن آپ نے فولڈر ڈھونڈنا ہے ایچ ٹی ڈاکس والا. یہ فولڈر آپ نے ڈھونڈ کے، ابھی میرے پاس یہاں پہ کافی سارے فولڈر ہیں لیکن آپ کے نہیں ہوں گے جو بھی آپ نے زیمپ انسٹال کیا ہے. تو وہاں پہ آپ اس میں اندر کوئی بھی فولڈر بنا سکتے ہیں اپنی مرضی کا، ٹھیک ہے. تو لیٹ سے ہم نے اس کے اندر ایک فولڈر بنایا اپنی مرضی کا اور اس کو ہم نے نام دیا. دیکھیں ابھی میں یہاں پہ نیا فولڈر بناؤں گا. یہ میں نے نیو فولڈر بنایا، اس کو میں نے نام دیا فار ایگزامپل وی یو کا، ٹھیک ہے. یہ میں نے وی یو کا فولڈر بنا لیا اور اس فولڈر کے اندر یہاں پہ میں نے کچھ بھی ایک فائل میں نے رکھ دی. لائک میں یہاں پہ ایک ایسا کرتا ہوں، ایک فائل رکھتا ہوں، یہ ٹیکسٹ ڈاکیومنٹ یہاں پہ میں نے رکھا. یہ صرف آپ کو یاد رہے یا دھیان رہے کہ جو فائلز ہم نے یہاں پہ رکھنی ہے یا تو وہ ایچ ٹی ایم ایل کی ہوں گی یا پی ایچ پی کی ہوں گی، ٹھیک ہے، تبھی وہ اوپن ہو سکتی ہیں، یا پھر سی ایس ایس وغیرہ کی وہ جو ہیلپنگ فائل ہوتی ہیں. تو یہاں پہ مثال کے طور پہ ہم اس فائل کا نام رکھتے ہیں ٹیسٹ ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل، ٹھیک ہے. یہ ہم نے اس کا نام رکھ دیا اور یہ ہمارے پاس فائل بن گئی. اب اس کو اگر میں رائٹ کلک کر کے نوٹ پیڈ میں ایڈٹ کروں گا، مثال کے طور پہ یہ میں نے اس کو نوٹ پیڈ کدھر گیا، یہ اس کو میں نوٹ پیڈ میں ایڈٹ کر لیتا ہوں. تو دیکھیں ابھی یہ خالی فائل ہے. میں اس کے اندر اگر مثال کے طور پہ ہیلو لکھ دیتا ہوں، دیٹس اٹ، میں نے ہیلو لکھ کے اس کو سیو کر لیا. اب اگر یہ فائل میں نے چلانی ہے یا یہ فائل میں نے چلا کے دیکھنی ہے کہ یہ کیسے چلتی ہے، تو اس کا بڑا آسان طریقہ ہے. دیکھیں دوبارہ سے میں آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ فائل پڑی ہوئی کدھر ہے. زیمپ ہم نے انسٹال کیا، انسٹال کریں گے تو وہ کدھر انسٹال ہوگا؟ سی ڈرائیو کے اندر. اب سی ڈرائیو کے اندر زیمپ میں اندر جائیں گے تو یہ ایچ ٹی ڈاکس والا فولڈر ہوگا. اس فولڈر کے اندر جانا ہے اور آپ نے اپنی مرضی کا ایک فولڈر بنا لیا ہے. جیسے کہ میں نے ابھی وی یو کے نام سے یہ فولڈر بنایا ہے، ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو جو فولڈرز میں نے ایل ایم ایس پہ اپلوڈ کر کے دیے ہیں آپ نے وہ ڈاؤن لوڈ کرنے ہیں، اور وہ کیسے ڈاؤن لوڈ کرنے ہیں وہ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں. تو آپ بھی اسی طرح سے وہ جو فولڈر ہوگا جو میں نے آپ کو بھیجا ہوا ہے وہ فولڈر آپ نے یہاں پہ پیسٹ کر لینا ہے. کس جگہ پہ پیسٹ کرنا ہے؟ ایچ ٹی ڈاکس والے فولڈر کے اندر. یہاں پہ وہ فولڈر آپ نے پیسٹ کر لیا، ٹھیک ہے. اور اس فولڈر کے اندر یہ اب آپ کے پاس یہ فائل بنی ہوئی ہے. اب اس فائل کو جب ہم نے چلانا ہے تو ہم کیسے چلائیں گے؟ یہ ہم گئے انٹرنیٹ ایکسپلورر میں یا گوگل کروم میں یا فائر فاکس میں، جو بھی براؤزر آپ یوز کرتے ہیں اس میں جانا ہے اور ساتھ ہی آپ نے زیمپ اوپن کر لینا ہے. آپ یہ اسٹارٹ والا بٹن پریس کر کے ایکس اے ایم پی یہ لکھو گے تو یہ زیمپ کنٹرول پینل آ جائے گا. اس پہ آپ کلک کرو گے تو یہ زیمپ کنٹرول پینل اس طرح سے آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا. اس میں آپ نے یہ جو پہلے دونوں آپشنز ہیں ان کو اسٹارٹ کر لینا ہے. ابھی ادھر اسٹاپ لکھا ہوا رہا ہے لیکن ابھی چونکہ یہ چل رہے ہیں اس لیے اسٹاپ لکھا ہوا رہا ہے، ادروائز یہاں پہ اسٹارٹ لکھا ہوا ہوگا. تو آپ نے پہلے دونوں آپشن پہ اسٹارٹ پہ کلک کر دینا ہے اور اس طرح سے ان کے گرین ہو جانے کا ویٹ کرنا ہے تاکہ اپاچے سرور اور مائی ایس کیو ایل سرور یہ جو دونوں پہلے ہیں یہ گرین کلر کے ہو جائیں گے اور ان کے آگے یہ نمبرز لکھے ہوئے آ جائیں گے، پورٹس اور پی آئی ڈیز وغیرہ، تب یہ چل پڑیں گے. جب یہ چل جائیں اس کو آپ نے مائنس کر دینا ہے، کلوز نہیں کرنا، مائنس کر دیں. یہاں پہ انٹرنیٹ ایکسپلورر میں جائیں، یہاں پہ لکھیں لوکل ہوسٹ سلیش وی یو، وی یو کا فولڈر بنایا تھا نا ہم نے سلیش وی یو، اور اس کے اندر سلیش فائل کا نام ہم نے کیا رکھا تھا؟ ٹیسٹ ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل. یہ لکھ کے آپ انٹر پریس کریں گے. اچھا ابھی یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے، یعنی کہ وہ فائل اس کو مل نہیں رہی ہے. تو دیکھتے ہیں ہم نے
کہاں پہ غلطی کی ہے، یہ فائل کا ہم نے کیا نام رکھا ہے، کچھ کیا کیا ہے. 1 سیکنڈ، یہ ہم گئے ویو کے اندر اور test.html. ہاں فائل تو ٹھیک ہے. اوکے چیک کر لیتے ہیں کہ ابھی کیا مسئلہ ہے. اچھا یہ میں نے ڈاٹ غلط ڈال دیا، سوری کاما ڈال دیا، ڈاٹ ڈالنا تھا. اوکے یہ دیکھیں فائل جو ہے ہماری چل پڑی ہے اور ہیلو اس فائل کے اندر لکھا ہوا تھا وہ ہمیں یہاں پہ نظر آ گیا ہے. تو اٹس ویری سمپل. اب یہ ہمارے پاس آسان ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ اس طرح سے چلا سکتے ہیں، کسی بھی فائل کو اپنے پاس اوپن کر سکتے ہیں. اچھا نیکسٹ جو ہمارے پاس بات ہے، ایک سیکنڈ میں ایک چیز کر لوں. اچھا تو نیکسٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ اب ہم نے یہ تو چلا لیا. اب آپ کو یہ میں بتا دیتا ہوں کہ جو آپ کی ٹیسٹ فیس کی فائلز ہیں وہ کس طرح سے آپ نے اپنے LMS سے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے اور اس کے بعد کس طرح سے ان کو اپنے پاس ایگزیکیوٹ کرنا ہے یا چلانا ہے. ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو آپ اپنے LMS میں جاؤ گے. ٹھیک ہے مثال یہ آپ کا LMS ہے، آپ یہاں پہ چلے گئے، اس میں یہ آپ نے اپنا پروجیکٹ والا جو اسائنمنٹ والا سیکشن ہے وہ اوپن کر لینا ہے. اس کے اندر یہ ٹیسٹ فیز کے آگے میں نے فائل سبمٹ کرائی ہوئی ہوگی، یہاں سے آپ نے ڈاؤن لوڈ پہ کلک کر لینا ہے. یہ آگے ڈاؤن لوڈ کا آپ کو نظر آ رہا ہوگا بٹن، سبمٹڈ ہے فائل، اس کے آگے ڈاؤن لوڈ کا بٹن ہے، اس پہ آپ نے ڈاؤن لوڈ پہ کلک کرنا ہے. جب یہ فائل آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ ہو گیا، ابھی چونکہ میرا سیکشن ایکسپائر ہو چکا ہے لیکن فائل آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی اس طرح سے. یہاں پہ آپ کے پاس ڈاؤن لوڈر میں ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی، جدھر بھی ڈاؤن لوڈ ہوگی وہاں پہ آپ نے چلے جانا ہے. فار ایگزامپل ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے پاس یہ یہاں پہ چلی گئی. اب یہ فائل آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ ہوئی ہے اس طرح سے، یہ زپ فائل ہوگی. ٹھیک ہے اس زپ فائل کو آپ نے سب سے پہلے اوپن کر لینا ہے. کیسے اوپن کریں گے؟ آپ نے WinRAR انسٹال کیا ہوا ہوگا اپنے لیپ ٹاپ میں، یا پھر آپ نے 7-zip نامی سافٹ ویئر ہے وہ انسٹال کیا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے تو ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف سے یہ اوپن ہو جائے گی. جیسے اس پہ آپ رائٹ کلک کریں، دیکھیں 7-zip کا آپشن آ رہا ہے، اس میں میں جاؤں گا اور اوپن آرکائیو کروں گا. اوپن آرکائیو کروں گا تو یہ دیکھیں میرے پاس فائل اوپن ہو گئی، اس کے اندر یہ ایک ہی فولڈر پڑا ہوا ہے. آپ نے اس فولڈر کو کرنا ہے کاپی، اور اس فولڈر کو کاپی کرنے کے بعد آپ نے جانا ہے سی ڈرائیو میں، وہاں پہ جانا ہے زیمپ کے اندر، اس کے اندر جا کے HT ڈاکس والے فولڈر کے اندر جانا ہے اور یہاں پہ اس فائل کو آپ نے کر دینا ہے پیسٹ. ٹھیک ہے اس فائل کو ہم یہاں پہ پیسٹ کریں گے. جیسے پیسٹ کریں گے تو جیسے یہ ویو والا فولڈر بنا ہوا ہے اسی طریقے سے ہمارے پاس وہ فولڈر بھی بن کے آ جائے گا. ٹھیک ہے تو اٹس ویری سمپل. تو ہم نے یہ کام پورا کر لیا. دوبارہ بتا دوں، ریپیٹ کر دوں آپ نے کیسے کرنا ہے. اپنے فولڈر کو ڈاؤن لوڈ، آپ جائیں گے اپنے LMS کے اندر، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کرو گے. ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ جو فائل ہے وہ اوپن ہو جائے گی کسی جگہ پہ جہاں پہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کی بھی ہوگی، اور اس فائل کو پھر آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے، اس کو آپ نے 7-zip کے ذریعے سے یا WinRAR اگر کیا ہوا ہوگا تو اس کے ذریعے سے اوپن کرنا ہے. اس میں جو بھی فائل ہوگی یا فولڈر ہوگا اس کو کاپی کرنا ہے. ٹھیک ہے آپ کے نام، آپ کے اس کے پروجیکٹ کے نام سے فائل ہوگی. ٹھیک ہے ای ویزا والی، یہ کسی اور کا ویسے میں آپ کو شو کرا رہا ہوں. تو یہ فولڈر آپ نے کاپی کرنا ہے. کاپی کرنے کے بعد آپ نے جانا ہے سی ڈرائیو کے اندر، اور سی ڈرائیو کے اندر جا کے زیمپ میں جانا ہے. زیمپ کے اندر HT ڈاکس والا فولڈر ہے اور اس کے اندر آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے. اب جب آپ اس کو پیسٹ کرو گے تو یہ آپ کے پاس اس طرح سے آ جائے گی، جیسے ای ویزا 1 آ گیا. ٹھیک ہے اب اس فولڈر کو جب آپ اوپن کرو گے نا تو اس فولڈر کے اندر آپ کے پاس یہ بہت ساری فائلز ہیں. ٹھیک ہے تو اب اس میں سے آپ نے دیکھیں یہ آگے فائل کی ٹائپ بھی آپ کو پتہ چل رہی ہوگی کہ فائل کی کون کون سی ٹائپ ہیں. جیسے کچھ PHP کی فائلز ہیں، کچھ SQL کی فائل ہیں، کچھ CSS کی فائل ہیں. آپ نے ان میں سے SQL کی فائل ڈھونڈنی ہے. ٹھیک ہو گیا، SQL کی فائل آپ نے ڈھونڈ لی، یہ آپ کو مل گئی. اگر آپ کو یہ اس طرح سے نہیں مل رہی تو آپ اپنے کسی اور فولڈر کے اندر دیکھ لیں. جیسے اب یہ انکلوڈ والا فولڈر ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ فائل پڑی ہوئی ہے SQL والی. تو اگر باہر نہ پڑی ہوئی ہوئی تو آپ نے فولڈر کے اندر دیکھ لینی ہے. ٹھیک ہے اول تو یہ باہر ہوگی، نہیں تو کسی فولڈر یا انکلوڈ والے فولڈر کے اندر پڑی ہوئی ہوگی. وہ فائل آپ کو مل گئی. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، انٹرنیٹ ایکسپلورر میں جانا ہے. یہاں پہ جا کے آپ نے صرف لوکل ہوسٹ لکھنا ہے. لوکل ہوسٹ لکھ کے اس کے بعد یہ آخر میں آپ کے پاس ایک آپشن آ رہا ہوتا ہے PHP my admin کا. اس PHP my admin والی کلاس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے، بٹن پہ سوری کلک کر دینا ہے. اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ نیو پہ کلک کرنا ہے. یہ نیو آپ کے پاس یہ اتنے سارے ڈیٹا بیسز نہیں آ رہے ہوں گے.
آپ نے نیو پہ کلک کرنا ہے. نیو پہ کلک کر کے یہاں پہ نام لکھنا ہے آپ نے ای ویزا بغیر اسپیس کے چھوٹے لفظوں میں, ٹھیک ہے. ای ویزا لکھ کے آپ نے کریٹ کر دینا ہے. کریٹ کر دیا, اس کے بعد جیسے آپ کریٹ کریں گے تو یہ آپ کے پاس ڈیٹا بیس بن جائے گا ای ویزا والا. اس کے اندر یہ ٹیبل نہیں شو ہو رہا ہوگا جو یہ ابھی ہو رہا ہے نا یوزرز والا, یہ نہیں ہو رہا ہوگا. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے یہاں پہ امپورٹ پہ کلک کرنا ہے, ٹھیک ہے. امپورٹ پہ کلک کریں گے, چوز فائل پہ کلک کریں گے, اور آپ نے کہاں پہ جانا ہے, سی فولڈر کے اندر, سی ڈرائیو کے اندر, زیمپ کے اندر, ایچ ٹی ڈاکس کے اندر, جہاں پہ بھی آپ نے اپنا وہ فولڈر رکھا ہوا ہے ای ویزا والا, اس فولڈر کے اندر, اور وہ فائل جو ایس کیو ایل والی میں آپ کو بتا رہا تھا, وہ فائل آپ نے ڈبل کلک کر کے سلیکٹ کر لینی ہے. سلیکٹ کرنے کے بعد اسکرول ڈاؤن کرنا ہے, اور نیچے رائٹ سائڈ پہ آپ کے پاس گو کا بٹن آ رہا ہوگا, گو والے بٹن پہ آپ نے کلک کرنا ہے. جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس فوراً سے یہ والا پیج جو ہے وہ یا ٹیبل جو ہے شو ہونا شروع ہو جائے گا, اور اس کے اندر یہ سارے یوزرز کی ڈیٹیل آ جائے گی. ٹھیک ہے جی, ڈیٹا آپ کا آ گیا, ٹیبل آپ کا جو ہے وہ امپورٹ ہو چکا ہے, آپ کا پروجیکٹ اب کنفیگرڈ ہے. ٹھیک ہے جی, اگر آپ کو یہ نہیں سمجھ آئے اسٹیپس, آپ دوبارہ ریوائنڈ کر کے اس کو دیکھ لیں. اچھا, اس کے بعد ہم نے اپنا فولڈر یا اپنا وہ اوپن کیسے کرنا ہے پروجیکٹ. دیکھیں آپ کے اب مثال کے طور پہ آپ نے جو فولڈر کاپی کیا ہے, اس فولڈر کا نام ہے ای ویزا 1, اور وہ آپ نے رکھا ہے سی کے اندر, زیمپ کے اندر, ایچ ٹی ڈاکس کے اندر. تو آپ لکھو گے لوکل ہوسٹ سلیش ای ویزا 1, یہ لکھ کے آپ نے انٹر پریس کر دینا ہے. ٹھیک ہے, جیسے بھی اس کا نام ہے, اگر ای مائنس ویزا 1 ہے تو آپ نے ای مائنس ویزا 1 لکھنا ہے, اگر کیپیٹل میں ہے تو آپ نے کیپیٹل میں لکھنا ہے. جس طرح سے بھی آپ کے اس فولڈر کا نام ہے جو کہ آپ نے اپنے ایل ایم ایس سے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا ہے سی, زیمپ اور ایچ ٹی ڈاکس کے اندر, وہی آپ نے یہاں پہ لکھ لینا ہے. اب میرا جو فولڈر ہے وہ چونکہ ایک اور فولڈر کے اندر ہے, تو اس لیے مجھے وہ نام تھوڑا سا لمبا لکھنا پڑتا ہے, لیکن آپ نے اس طرح سے نہیں کرنا. تو میں یہ لکھوں گا ای ویزا 1 اور انٹر کروں گا, تو یہ دیکھیں میرے پاس پروجیکٹ آپ کا اوپن ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, سو یہ پروجیکٹ ہمارا اوپن ہو گیا. اب اس کے اندر ہماری جو ریکوائرمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے 2 صفحے بنانے تھے, ایک رجسٹریشن کا پیج ہے اور ایک لاگ ان کا پیج ہے. دیکھیں رجسٹریشن پیج پہ ہم آلریڈی موجود ہیں, اور ایک آ گیا ہمارے پاس یہ لاگ ان کا پیج. ٹھیک ہے, یہ لاگ ان کا پیج آ گیا اور یہ رجسٹریشن کا پیج آ گیا. یہ دونوں کام کیسے کرتے ہیں, ان کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں, وہ میں آپ کو بالکل بتا دیتا ہوں. لیکن اس سے پہلے ایک کام اور بھی کرنا ہے. اس سے کام پہلے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جانا ہے گوگل پہ, اور آپ نے گوگل پہ جا کے 1 سیکنڈ, آپ نے جانا ہے google.com پہ. یہاں پہ آپ نے جا کے لکھنا ہے وی ایس کوڈ, یہ لکھ کر آپ نے انٹر پریس کر دینا ہے. پہلا آپ کے پاس لنک آئے گا, اس کو آپ نے کلک کر دینا ہے, اور ڈاؤن لوڈ فار ونڈوز, یہ سامنے ہی آپ کا بلو بٹن آ رہا ہوگا, اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے. یہ جب ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا اس کو آپ نے انسٹال کر لینا ہے. انسٹال کرنے کے بعد, ٹھیک ہے, بالکل سمپل سا ہے, ڈاؤن لوڈ کریں, انسٹال کریں. انسٹال کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اپنا جو کوڈ رکھا ہوا ہے وہاں پہ جانا ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ ہم نے رکھا ہوا ہے سی کے اندر, زیمپ کے اندر, ایچ ٹی ڈاکس کے اندر. تو وہاں پہ ہم گئے, یہ ہم نے کوڈ اوپن کیا ہے, دیکھیں ساری کوڈنگ کی فائل ہمارے پاس اوپن ہے. یہاں پہ رائٹ کلک کروں گا اور یہ آپشن میرے پاس آ رہا ہے اوپن ود کوڈ. ایزی ہے, ٹھیک ہے, رائٹ کلک کیا, آپشن آ رہا ہے اوپن ود کوڈ, اس پہ اوپن ود کوڈ پہ کلک کروں گا, یہ سارا کوڈ میرے پاس اوپن ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آپ کے پاس اس طرح سے اوپن ہوگا, یہ فائلیں اوپن نہیں ہوئی بھی ہوں گی, یہ آپ کے پاس اس طرح سے اوپن ہوگا. ٹھیک ہے, یہ تو یہ ساری فائلیں آپ کے پاس اوپن ہو جائیں گی. لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں, یہ آپ کے پاس جتنی بھی کوڈنگ کی فائلز ہیں وہ اوپن ہو چکی ہیں. اب اس میں سے ہم نے جو بھی فائل دیکھنی ہے اس کا, یہاں پہ ہم اس پہ سنگل کلک کریں گے, اس کا کوڈ اوپن ہو جائے گا. مثال کے طور پہ ابھی ہم یہ رجسٹریشن والے پیج پہ ہیں, اگر اس پیج کا نام آپ نے دیکھنا ہوگا, اس پیج کا نام کیا ہے, تو اس پیج کا نام یہ اوپر آپ کو یو آر ایل بار میں نظر آ رہا ہوگا, جو کہ ہے index.php. تو ہم نے یہاں پہ جا کے index.php والے پیج پہ سنگل کلک کیا, اور یہ دیکھیں اس کا کوڈ اوپن ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا کوڈ ہے. اب آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو جو میں نے بھیجی تھی ریکارڈنگ وہ آپ نے سنی ہوگی, اور اس کے اندر جو آپ کو میں نے بیسکس بتائے ہیں ایچ ٹی ایم ایل کے اور سی ایس ایس کے اور پی ایچ پی کے, وہ آپ کو آتے ہوں گے, تاکہ یہ جو ہے اس کو آپ بہتر طریقے سے سمجھ سکو. سو یہ ہمارے پاس فائل اوپن ہو گئی. دیکھیں اس کے اندر جس ترتیب سے یہ چیزیں بنی ہوئی ہیں اسی ترتیب سے یہاں پہ کوڈ ہوگا. ٹھیک ہے, جیسے سب سے پہلے آپ کے پاس یہ دیکھیں اوپر ایک پٹی ہے, اس کے اوپر یہ ای ویزا سسٹم کا نام لکھا ہوا ہے, پھر رجسٹریشن, لاگ ان, اور آپ کی پھر آگے آئی ڈی آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. تو سب سے پہلے یہی چیزیں آپ کے پاس ہوں گی, اس کو ہم نیو بار بولتے ہیں. تو یہ دیکھیں اس کا کوڈ یہ آ گیا. ٹھیک ہے, اور یہ دیکھیں ای ویزا سسٹم بھی لکھا ہوا رہا ہے, جو کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کو 3 بٹنز نظر آ رہے تھے, وہ 3 بٹن بھی آپ کو میں شو کرا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, وہ یہ آپ تھوڑا سا
साइड पे जाएंगे, ये रजिस्ट्रेशन का बटन आ गया, ये लॉगिन का बटन आ गया, और ये आपका आपकी आईडी लिखी हुई आ गई है, ठीक है। तो उनके ये कोड हैं। अगर आपसे सुपरवाइजर पूछता है कि जी इस बटन का कोड दिखा दें, फॉर एग्जांपल वो कहता है लॉगिन वाले बटन का कोड दिखाएं किधर है, तो आपने ये देख लेना है कि आपने ये लाइन सेलेक्ट करनी है और इसे बताना है कि सर ये पड़ा हुआ है कोड, ठीक है। तो ये लॉगिन बटन का कोड है। इस पे क्लिक करने से हम किस सफ़े पे जाएंगे, ये साथ ही लिखा हुआ है href हाइपर रेफरेंस, किस सफ़े पे जाएंगे, login.php वाले सफ़े पे हम चले जाएंगे अगर हम लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने लॉगिन बटन पे क्लिक किया, मैंने इस सफ़े पे नेविगेशन की, और इस सफ़े का नाम ऊपर आप देखें यूआरएल बार में क्या लिखा हुआ है, login.php। तो ये 3 बटन्स बने हुए हैं। उसके बाद हमारे पास नीचे वेलकम का सेक्शन बना हुआ है। देखिए ये जो वेलकम लिखा हुआ है आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना, तो इसका ये सेक्शन बना हुआ है, और उसके अंदर ये PHP का थोड़ा सा कोड है। अब ये कोड क्या है, देखें ये कोड आपको आगे चल के समझ आएगा जब मैं इस सॉफ्टवेयर को या इस प्रोग्राम को जब चलाऊंगा ना, तब आपको इसका मकसद समझ आएगा। अभी आप इसको फिलहाल रहने दें। अच्छा, नीचे उसके बाद आ गए तो ये हमारे पास बिल्कुल एक सिंपल सा फॉर्म बना हुआ है, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म है, ठीक है। ये देखें रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा हुआ है, जो कि आपको ये नजर आ रहा होगा, और उसके बाद आपके पास ये बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ठीक है, फॉर्म ग्रुप। ये फॉर्म ग्रुप्स आपके पास बने हुए हैं जो कि डिव्स के अंदर हैं। डिव्स आपको मैंने बताया था कि डिवीजन को कहते हैं, जो कि एक बॉक्स की मानंद होता है, एक ख्याली बॉक्स होता है, और चूंकि हमने चीज़ों को अरेंज करके रखना होता है HTML के अंदर, तो हम उनको बॉक्सेस के अंदर रखते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे हमने बहुत सारे डिव्स बना लिए हैं, और हर डिव को फिर आगे हमने क्लासेस असाइन की हैं फॉर्म ग्रुप की। और ये जो फॉर्म ग्रुप की क्लास है, ये बूटस्ट्रैप की चूंकि क्लास है। बूटस्ट्रैप क्या चीज़ है, बूटस्ट्रैप जो हम CSS का मैंने आपको बताया था कि कलरिंग और डिजाइनिंग के लिए हम यूज करते हैं कोड, बूटस्ट्रैप वो है। तो ये हमने डिव्स बनाए, उस डिव्स के अंदर हमने क्या किया, लेबल लगाया। लेबल कहते हैं इस हेडिंग को, ये जो हेडिंग ऊपर दी हुई होती है, और नीचे हमने ये बॉक्स बना दिया, इनपुट बॉक्स, ठीक है। ये जैसे ये बॉक्स बना हुआ है। अब इस बॉक्स का आपने क्या क्या इसकी एट्रीब्यूट्स आपने डिफाइन की हुई हैं। पहला इसका एट्रीब्यूट जो बॉक्स का आपने बताया, वो ये बताया कि ये टेक्स्ट टाइप का बॉक्स है, यानी इसके अंदर आप ABC लिख सकते हो। दूसरी चीज आपने बताया कि इस बॉक्स की क्लास कौन सी है, तो आपने बताया कि इसकी क्लास है फॉर्म माइनस कंट्रोल, यानी कि फॉर्म जो है उसको खुद कंट्रोल करेगा, इसकी क्लास को, इसके डिजाइन को, इसके कलरिंग को, इसकी शेप को। फिर आपने इसका नाम बताया कि इस डब्बे का नाम क्या है, तो डब्बे का नाम आपने बताया कि डब्बे का नाम भी नाम ही है, इसका नाम हमने नाम रखा हुआ है। फिर आपने बताया प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर कहते हैं जो कि आप इस डब्बे के अंदर लिखा हुआ आपको ये नजर आ रहा है, इंटर नेम, लेकिन जैसे ही मैं कुछ टाइप करना शुरू करता हूँ तो ये मिट जाता है। इसको कहते हैं प्लेस होल्डर या हिंट। तो हिंट के लिए हमने यहाँ पे प्लेस होल्डर लिखा हुआ है, और दैट्स इट। उसके बाद ये हमारा टैग क्लोज हो चुका है। तो इस तरह करके हमने ये सारे बॉक्सेस बनाए हैं जो कि नीचे आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये सारे बॉक्सेस बन गए। आखिर में ये कंट्री सिलेक्ट करने वाला बॉक्स भी बन गया, जिसके अंदर ये फिलहाल 3 कंट्रीज हैं, आप चाहें तो और भी लिख सकते हैं। और कंट्रीज लिखने का तरीका आसान है, ये आपने एक ऑप्शन को कॉपी किया, इसको इस ऑप्शन के बाद नीचे पेस्ट कर दिया, और दोनों जगहों पे कंट्री का नाम चेंज कर दिया। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल UAE, और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ UAE, ठीक है। सेव करूंगा, वापस अपने पेज पे जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, अब मैं कंट्री की लिस्ट में देखूंगा तो UAE भी मुझे नजर आ रहा होगा। तो ये मेरे पास जो है ये फॉर्म है। फॉर्म के अंदर हमारे पास सिंपल सी कुछ बॉक्सेस और कुछ फील्ड्स हैं। उसके बाद आखिर में ये सेव का बटन नजर आ रहा होगा आपको, और ये सेव का बटन जो है वो ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखें आपको इसके अंदर ये वैल्यू इज इक्वल टू सेव लिखी हुई नजर आ रही है। तो ये हमारे पास वो सेव का बटन है, और उसके बाद ये फॉर्म का कोड एंड हो रहा है, एंड दैट्स इट, ये आपका सफा खत्म हो गया। अब ये जो फॉर्म है ये चलता कैसे है, देखिए ये आपको मैंने लास्ट जो वीडियो लेक्चर सेंड किया था उसके अंदर डिटेल से बताया था, लेकिन यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि फॉर्म कैसे चलता है, ठीक है। सो लेट्स इमेजिन कि हमने इस फॉर्म के अंदर डेटा फिलअप किया, ठीक है। हमने इस फॉर्म के अंदर लिखा कि हमारा जो कस्टमर है या जो यूज़र है उसका नाम क्या है। मिसाल के तौर पे हमने लिखा जी उसका नाम है मोहम्मद अली, उसका नाम है, बल्कि नहीं अली नहीं लिखेंगे, मोहम्मद, और सर नेम अली है। यूज़र नेम लिखेंगे मिसाल के तौर पे m.ali, और पासवर्ड लिखेंगे 123, पासवर्ड कंफर्म करेंगे 123, ईमेल एड्रेस लिखेंगे m.ali@gmail.com, और दोबारा कंफर्म करेंगे m.ali@gmail.com, और कंट्री यहाँ से कोई भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, पाकिस्तानी रहने देते हैं। इसको मैं सेव करूंगा तो ये देखें मुझे यहाँ पे एक अलर्ट नजर आ रहा है, अकाउंट रजिस्टर्ड। तो ये अलर्ट है मुझे कहाँ से नजर आ गया, वेलकम के नीचे। तो ये वो कोड है जो मैं आपको बता रहा था कि आपको बाद में पता चलेगा जब मैं सॉफ्टवेयर चलाऊंगा। तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि
PHP के अंदर लिखा हुआ है कि इफ इस सेट गेट, इसका मतलब आपको सिर्फ इतना समझ आना चाहिए कि इस सेट गेट का मतलब ये होता है कि ये जो ऊपर हमारे पास URL बार होती है ना, इसमें चेक करो, इस पूरी लाइन का इस सेट गेट का मतलब ये होता है कि इस URL बार के अंदर चेक करो, क्या चेक करो, यू है या नहीं है। तो जब वो चेक करेगा तो देखेगा हाँ यार यू तो इसके अंदर है, अब यू है तो फिर उसके अंदर वो चला जाएगा। अब आगे वो चेक करेगा कि यू की वैल्यू क्या है। अब हम उसे कह रहे हैं कि इफ यू की वैल्यू है 1, यानी जो भी यू है उसकी वैल्यू हमें मिली है, उसकी वैल्यू हमें मिली है 1, तो हम क्या करेंगे, हम उसे ये चीज एको करा देंगे, ये चीज हम उसे शो करा देंगे। एको का मतलब होता है स्क्रीन पे प्रिंट कराना। एको का लफ्ज जो है वो PHP की कमांड है जो कि स्क्रीन पे कोई भी चीज प्रिंट कराने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एको की मदद से उसको प्रिंट करा देंगे जो भी चीज हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं। तो हमने क्या चेक किया कि यू है URL बार के अंदर या नहीं, हाँ जी है, और URL की वैल्यू भी 1 है। अगर उसकी वैल्यू 1 है तो क्या लिखा हुआ नजर आए हमें, हमने क्या एको कराया, हमने H4 टैग एक लगाया। H4 टैग होता है हेडिंग के लिए, यानी 4 नंबर की हेडिंग हमने लगाई। टोटल 6 साइज की हेडिंग होती है, नंबर 1 सबसे बड़ी, नंबर 6 सबसे छोटी हेडिंग। तो हमने 4 नंबर की हेडिंग यूज की है जो कि दरमियानी टाइप की होती है, और उस हेडिंग वाले टैग के अंदर मैंने लिखा क्या है, मैंने ये चीज प्रिंट करा दी है, अलर्ट अकाउंट रजिस्टर्ड। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कुछ चेंज करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं सक्सेस लिख देता हूँ, तो अब अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो ये सक्सेस लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो वो जो मैं लिखूंगा वो वहां पे शो हो जाएगा। इसी तरह अगर 2 आता है, यू की वैल्यू 2 होती तो फिर ये लिखा हुआ था। अब यू की वैल्यू 2 कब आएगी ये मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। मिसाल हमने एक नया अकाउंट रजिस्टर्ड किया, हमने अहमद का अकाउंट रजिस्टर्ड किया, और यहाँ पे हमने अहमद का यूजर नेम भी अहमद ही रख दिया, पासवर्ड 123 लिखा, लेकिन नीचे वाले में हमने 1234 कर दिया। ठीक है, यानी ऊपर वाला पासवर्ड और है, नीचे वाला पासवर्ड और है। ईमेल हमने इसकी ठीक लिखी, ahmed@gmail.com, और यहाँ पे भी हमने लिख दिया ahmed@gmail.com। ठीक है, अब बाकी सारा कुछ ठीक है, नाम भी ठीक है, यूजर नेम भी ठीक है, सिर्फ पासवर्ड गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पासवर्ड है वो 123 लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो पासवर्ड है वो 1234 लिखा हुआ है। तो अब अगर मैं इसको सेव करूंगा तो अब ये देखिए, इसने मुझे एक और एरर शो कराया है कि पासवर्ड्स डज नॉट मैच। ठीक है, अब ये पासवर्ड क्यों मैच नहीं हो रहे, क्योंकि यहाँ पे अब हमारे पास यू की वैल्यू 2 हो गई है। जब यू की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी, उस वजह से हमारे पास यहाँ पे एरर चेंज हो गया है। अब हमें कोई डिफरेंट कलर का एरर नजर आ रहा है। इसी तरह से अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, नाम लिख देते हैं, मिसाल के तौर पे हमने नाम लिखा, वही नाम दोबारा लिखते हैं, लेकिन अब हम क्या करते हैं, पासवर्ड ठीक देते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं पासवर्ड हम ठीक देते हैं, और ईमेल गलत दे देते हैं, ahmed1 कर देते हैं, और नीचे सिर्फ ahmed@gmail.com। अब अगर इसको मैं सेव करूंगा, अब मुझे ये नया एरर दिखाएगा, ईमेल्स डज नॉट मैच। क्यों? क्योंकि अब यू की वैल्यू जो URL बार में है वो 3 हो गई है। तो जो जो वैल्यू चेंज होती जाएगी, 2 लिखी भी आएगी तो आपको ये एरर शो नजर आएगा, 3 लिखी भी आएगी तो आपको ये एरर शो होगा, 4 लिखी भी आएगी तो आपको ये एरर शो होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट आपको एरर्स तब वहां से नजर आएंगे। लेकिन ये एरर्स आपको नजर कैसे आ रहे हैं, यू की वैल्यू कौन भेज रहा है, ठीक है, वो हमने देखनी है। लेकिन उसके लिए देखिए हम क्या करते हैं कि इस फॉर्म को हम दोबारा से जायजा लेते हैं कि ये फॉर्म क्या कर रहा है, ये फॉर्म कहाँ पे भेज रहा है डेटा को। ये फॉर्म हमने फिलअप किया, इस फॉर्म के अंदर हमने डेटा डाला, डेटा इस फॉर्म के अंदर डाल के हमने जैसे ही सेव बटन पे क्लिक किया, तो इस फॉर्म ने करना क्या है ये हम देखना चाह रहे हैं। तो हम सबसे पहले तो जाके इस फॉर्म का कोड निकालेंगे। तो इस फॉर्म का कोड ये आपके पास पड़ा हुआ है जहाँ से फॉर्म शुरू हो रहा है। अब ये जो फॉर्म का कोड है जहां से ये फॉर्म शुरू हो रहा है, यहाँ पे अगर आप देखें तो फॉर्म वाले टैग के अंदर 3 चीजें हमने उसे बताई हैं। ठीक है, पहली चीज बताइए मेथड, कि तुम्हारा मेथड क्या है। मेथड हम बता रहे हैं पोस्ट, यानी कि ये जितना भी डेटा तुम्हें मिल रहा है ना, इसको तुमने भेज देना है, पोस्ट कर देना है। दूसरी चीज बता रहे हैं हम उसे एक्शन, कि यार कहाँ पे भेजना है, करो क्या डेटा को। पहले हमने बताया कि इसका मेथड क्या है, यानी कि डेटा को कैसे ट्रीट करना है, तो हमने इसे बताया कि पोस्ट कर देना है। फिर बताया एक्शन, कि डेटा को भेजना कहाँ पे है, तो हमने उसे सफ़े का नाम बता दिया कि इस सफ़े पे डेटा को भेज देना है। सफ़े का नाम क्या बताया, add user class dot php। यहाँ पे कोई भी नाम हो सकता है, ये नाम हमने खुद लिखने होते हैं। ठीक है, जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं तो ये नाम हम खुद लिखते हैं, जो भी नाम हम यहाँ पे लिखेंगे उसी नाम की हम क्लास बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने वो नाम लिख दिया कि add user class dot php वाले पेज पे डेटा भेज दो। और ये जो तीसरी चीज है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास
फॉर्म के अंदर मुख्तलिफ किस्म का डेटा हो सकता है, एक दो टाइप का डेटा नहीं है बल्कि मुख्तलिफ किस्म का डेटा है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने इसे बता दी। अब जैसे ही मैं ये सेव का बटन दबाऊंगा तो फॉर्म के अंदर जो कुछ मैंने लिखा हुआ है वो सारा डेटा पोस्ट हो जाएगा और किस सफ़े पे चला जाएगा, एड यूजर क्लास डॉट php पे। अब एड यूजर क्लास डॉट php वाला जो सफ़ा है वो आपके पास यहाँ पे जो हमने कोड ओपन किया हुआ है इसके अंदर आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। हमने वो कोड ओपन कर लेना है। ये एड यूजर क्लास वाला कोड ओपन किया, देखिए ये इसके अंदर हमें कोड नजर आ गया। तो अब इस सफ़े के अंदर हो क्या रहा है, इस सफ़े के अंदर देखें सबसे पहला काम तो ये है कि हमने एक डेटाबेस की फाइल को यहाँ पे शामिल किया है। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना। कौन सी डेटाबेस की फाइल, जिसके जरिए से हम डेटाबेस के साथ अपना कनेक्शन बना रहे हैं। और ये जो डेटाबेस की फाइल है ये शामिल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो हमने डेटाबेस शुरू में इंपोर्ट किया था उस डेटाबेस के अंदर हमने चूंकि डेटा रखना है और वो डेटाबेस पड़ा हुआ है MySQL के अंदर, यहाँ पे पड़ा हुआ है। देखिए ये यूजर वाला टेबल यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो डेटा हम इसके अंदर रखना चाह रहे हैं। तो इसके साथ कनेक्ट करवाने के लिए फिर हमने एक फाइल बनाई हुई है और वो फाइल है db.php और उसके अंदर सिर्फ एक ही लाइन हमने लिखी हुई है। वो लाइन ये है, बड़ा उसमें आसान सा एक काम हम कर रहे हैं, MySQLi कनेक्ट। ये हमने एक कमांड इस्तेमाल की है और इस कमांड को हम कह रहे हैं कि यार हमारा सर्वर है लोकल होस्ट, यूजर नेम है रूट, पासवर्ड कोई नहीं है, डेटाबेस का नाम है ई-वीज़ा, इसके साथ कनेक्शन कर दो। जो नहीं होता और का मतलब है अगर कनेक्शन नहीं होता तो क्या लिखा हुआ आ जाए, ये लिखा हुआ आ जाए प्रॉब्लम अकर इन डीबी कनेक्शन, कि डीबी कनेक्शन में प्रॉब्लम आ गई है। तो ये छोटा सा काम हमने यहाँ पे db.php में कर दिया। अब चूंकि डेटाबेस के साथ कनेक्शन एक बार हमने बना लिया, बार बार नहीं बनाना, तो ये फाइल हमने बना के सेव कर दी और जब भी हमें डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाने की जरूरत पेश आएगी ये फाइल हम वहां पे इंक्लूड करा लेंगे। तो बजाय वो कोड बार बार लिखने के हमने उस कोड को बार बार इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो ये फायदा होता है रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड का, कि आप एक दफा कोड लिखकर उसको बार बार मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहले तो ये फाइल हमने इंक्लूड करा ली। अब उसके बाद ये जो चीजें हैं ये क्या हैं, देखें फॉर्म जो है उसने डेटा पोस्ट किया था। मैंने आपको बताया था ना कि फॉर्म जो है उसको सबसे पहली जो चीज हमने बताई थी वो मेथड बताई थी कि डेटा को तुमने करना क्या है। तो हमने फॉर्म को बताया था कि जितना भी डेटा तुम्हें नीचे ये नजर आ रहा है, जितने भी डब्बे हैं उनके अंदर जो भी कुछ लिखा जाएगा उसको कर देना है पोस्ट। पोस्ट का मतलब होता है भेज दो। तो जब वो पोस्ट हो जाएगा तो अगले सफे पे आ जाएगा, लेकिन अब इस सफे पे जब वो आएगा तो उसको हमने अलग अलग तो करना है क्योंकि डेटा तो सारा इकट्ठा है। तो हम क्या करेंगे, हम उनके नाम के हिसाब से उनको अलग अलग करेंगे। याद होगा आपको कि मैंने इस अभी बताया था आपको कि जितने भी हमने इनपुट बॉक्सेस बनाए हैं हर बॉक्स का हमने नाम रखा है, ठीक है। जैसे हमारे पास ये पहला डब्बा है, इसका नाम होगा नाम, दूसरे डब्बे का नाम होगा सर नेम, तीसरे डब्बे का नाम होगा यूजर नेम, चौथे डब्बे का नाम पासवर्ड, पांचवें डब्बे का नाम पासवर्ड 2, क्योंकि दो डब्बे हैं ना, पहला पासवर्ड 1 दूसरा पासवर्ड 2। तो हर डब्बे का नाम हमने रखा हुआ है, जैसे इंसानों के नाम होते हैं डब्बों के भी नाम है। तो हम इनको नामों के हिसाब से बुलाएंगे और चूंकि ये बाय पोस्ट रहे हैं तो इसलिए फिर हम इसको बताएंगे। किसको बताएंगे, PHP को बताएंगे कि डॉलर जो है वो एक वेरिएबल का नाम है। डॉलर वेरिएबल का नाम नहीं, सॉरी साइन है। डॉलर जिस चीज से पहले लगा वो समझ लें कि वो चीज जो है वो एक वेरिएबल है। तो आप यहाँ पे लिखोगे $_पोस्ट। $_पोस्ट का मतलब है कि बाय पोस्ट आने वाली जो चीजें हैं उनमें से सबसे पहले हमने किसको अलग किया, नेम को, ठीक है। हमने नेम को अलग किया। अब नेम को अलग करने का क्या तरीका है, $_पोस्ट लिखा, उसके बाद दो सिंपल ब्रैकेट्स लगाई, उन दो सिंपल ब्रैकेट्स के अंदर दो सिंपल कॉमे लगाए, कोटेशंस जिनको कहा जाता है, और उसके अंदर हमने उस डब्बे का नाम लिख दिया जिसका डेटा हम अलग करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम नाम वाले डब्बे का डेटा अलग करेंगे। तो ये हमने लिखा बाय पोस्ट, जो चीज आ रही है उसमें से नाम वाले डब्बे में जो लिखा हुआ था वो अलग करके किस में रख दो, $नेम नामी वेरिएबल में। तो ये $नेम नामी वेरिएबल हमने खुद बनाया, ठीक है। जो $_पोस्ट वाला वेरिएबल है ये PHP का अपना बनाया हुआ है, ये कीवर्ड है, कीवर्ड चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ये PHP का अपना कीवर्ड है या कमांड है, जबकि जो $नेम और $सर नेम और $यूजर नेम जो वेरिएबल्स हैं ये हमने खुद बनाए हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, जो आने वाला डेटा है उनमें से नाम वाले डब्बे के अंदर जो लिखा हुआ था वो वैल्यू उठा के हम $नेम नामी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैथ्स के अंदर हम लिखते थे लेट x = 1, तो x के अंदर हम 1 वैल्यू स्टोर कर देते थे और जहां जहां x लगता था हम कहते थे यहाँ पे 1 लगा हुआ है। तो ये भी हम ऐसे ही कर रहे हैं, नाम वाले डब्बे के अंदर जो कुछ लिखा हुआ था उसको ला के हमने $नेम के अंदर
स्टोर कर दिया। और इसी तरह बाकी जितने डब्बों में जो कुछ लिखा हुआ था वो हमने उठा के उनके डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर हमने स्टोर करा दिया। जैसे ईमेल के अंदर जो लिखा हुआ था वो ईमेल वाले डब्बे के अंदर, सॉरी, जैसे ये है ना ईमेल वाला डब्बा, ये देखें, ये इंटर ईमेल एड्रेस, तो इस डब्बे के अंदर जो भी मैं लिखूंगा, चाहे मैं ये लिख दूं, तो ये वाली जो वैल्यू है ये किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, डॉलर ईमेल के अंदर। तो इस तरह से जो भी मैंने डब्बों के अंदर चीजें लिखी हैं वो हमारी इन वेरिएबल्स के अंदर आके स्टोर हो जाएंगी। अब हम क्या कर रहे हैं, आगे हम चेकिंग कर रहे हैं। ये हमारी एक रिक्वायरमेंट थी टेस्ट फेज की। क्या रिक्वायरमेंट थी कि अगर पासवर्ड दोनों एक जैसे ना हो तो एरर शो हो, या ईमेल्स भी एक जैसी ना हो तो भी एरर शो हो। तो हमने ये चीज चेक करनी है, तो हम आसानी से ये काम इफ लगा के कर सकते हैं। आपने CS201 के अंदर ये पढ़ी होगी इफ कमांड के किस तरह से काम करती है कि इफ डॉलर पासवर्ड नॉट इक्वल टू, ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है इसको नॉट बोलते हैं, ठीक है। तो डॉलर पासवर्ड अगर इक्वल नहीं है पासवर्ड 2 के, देखिए ना दोनों डब्बों से पासवर्ड आ रहा है ना हमें, ये पहला डब्बा और ये दूसरा डब्बा, तो ये इसके अंदर अगर मैं कुछ लिखूं फिर इसके अंदर कुछ लिखूं, मैं इसको देख भी सकता हूं कि मैंने ये क्या लिखा है, ठीक है। तो ये इन दोनों डब्बों से जो पासवर्ड है वो मेरे पास आ रहा है। अब उन दोनों पासवर्ड्स को हमने चेक करना है कि इफ डॉलर पासवर्ड इज नॉट इक्वल टू पासवर्ड 2, तो हम क्या करेंगे, हमने PHP का एक लफ्ज इस्तेमाल किया, या कीवर्ड बोलते हैं इसको, या कमांड बोल लें। हमने एक कमांड इस्तेमाल की हेडर। हेडर वाली कमांड क्या करती है, यूजर को किसी और जगह भेज देती है। हमने क्या किया, अगर पासवर्ड मैच नहीं कर रहे, अगर पासवर्ड 2 के बराबर नहीं है तो क्या करो, हेडर भेज दो। किधर भेज दो, लोकेशन देते हैं तुम्हें, किस लोकेशन पे भेजो, इंडेक्स वाले पेज पे भेज दो। क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है साथ लेकर जाओ। क्या लेकर जाओ, u की वैल्यू 2। तो देखिए हम खुद इसे बता रहे हैं कि अब u की वैल्यू 2 लेकर जाओ साथ। तो यहाँ पे हम उसे u की वैल्यू 2 दे रहे थे, जो कि यहाँ पे फिर उसको नजर आ रही थी ये एरर्स, और ये जो मिसाल 2 लिखा हुआ था तो ये उसे नजर आती थी, ठीक है। तो वो इधर से आ रही थी कि अगर पासवर्ड्स दोनों के एक जैसे नहीं होंगे तो हम उसे खुद इंडेक्स वाले पेज पे वापस भेज देंगे। इंडेक्स वाले पेज का मतलब रजिस्ट्रेशन पेज, और u की वैल्यू 2 हमने खुद साथ भेजी है। और जब URL को नजर आएगा कि u में 2 लिखा हुआ है, तो कोडिंग के हमने अंदर मेंशन किया हुआ था कि अगर URL में u की इक्वल टू 2 वैल्यू आ जाए तो तुमने एरर शो करा देना है, ये वाला कि पासवर्ड्स डज नॉट मैच। इसी तरह से अगर ईमेल मैच नहीं होगी तो हम उसे इंडेक्स वाले पेज पे वापस भेज देंगे, लेकिन अब u की वैल्यू 3 भेजेंगे, और जब 3 जाएगी तो फिर उसे क्या एरर शो होगा कि ईमेल्स डज नॉट मैच, ठीक है, क्योंकि हमारा अब ईमेल का कंपैरिजन हो रहा था। अच्छा, ये सब कुछ हो गया। अब हम नीचे एक और काम कर रहे हैं, अब हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारा ये जो डेटा आया ये सबमिट वाले बटन से ही आया या वैसे ही आ गया। तो उसके लिए देखें ना, ये मैंने जो बटन लगाया हुआ था सेव वाला, इसका नाम मैंने क्या रखा हुआ था, सबमिट। लॉगिन वाला बटन, सॉरी, सेव वाला जो बटन है नाम उसका सबमिट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं कि हमारे पास ये जो डेटा सारा आया है वो अगर लॉगिन बटन दबाने से आया ना ये, तो फिर तो तब ये सारे अंदर वाले काम करो। अगर लॉगिन वाला बटन नहीं दबा फिर ये काम नहीं करने। इसका फायदा क्या होगा, अगर कोई बंदा डायरेक्टली ये पेज ओपन भी कर लेता है तब ये काम सारे नहीं होंगे। यानी अगर कोई बंदा बीच में चालाकी करता है कि डायरेक्टली इस पेज को ओपन कर ले और ये फॉर्म फिल ना करे, और बगैर फॉर्म फिल किए बगैर बटन को प्रेस किए डेटा एंटर करना चाहे डेटाबेस में, तो वो ये नहीं कर सकेगा, ठीक है। अगर कोई बंदा डायरेक्टली इस पेज को ओपन करता है तो कुछ भी नहीं होगा। तो इस मकसद के लिए हमने ये लाइन लगाई है कि अगर तो लॉगिन का बटन प्रेस होता है तो ये सारे काम करो। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए हमने यूजर नेम और ईमेल दोनों मंगवा लिए हैं, क्योंकि वो जो बंदा फॉर्म फिल कर रहा है उसने अपना यूजर नेम भी लिखा है और अपनी ईमेल एड्रेस भी लिखी है। तो हमने यहाँ पे एक काम किया, हमने यहाँ पे क्यूरी लगाई है, MySQLi क्यूरी। ये PHP की एक कमांड है और ये करती क्या है, ये दो चीजें आपसे मांगती है। पहली बात मांगती है डेटाबेस का कनेक्शन, जो कि हम इसे दे रहे हैं $CON की सूरत में। और ये कहाँ से मिल रहा है हमें, ये हमें DB वाली फाइल से मिल रहा है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि DB वाली फाइल में $CON के नाम से हमने ये कनेक्शन बना के रखा हुआ है, ठीक है जी। तो हम इससे पहले तो डेटाबेस का कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, कॉमा लगाएंगे, कॉमे के बाद हम इसे अगली चीज प्रोवाइड करेंगे जो है क्यूरी। क्यूरी का तर्जुमा है सवाल, हम इसे सवाल करते हैं। तो यहाँ पे हमने डेटाबेस से सवाल किया है, क्या सवाल किया है, डेटाबेस से हमने सवाल किया है कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू $यूजर नेम। $यूजर नेम में वो वैल्यू पड़ी हुई है जो अभी अभी हमारे पास बजरिया फॉर्म आई है, यानी जो बंदा अभी फॉर्म फिल करके डेटा हमें भेज चुका है उसकी वैल्यू को हम डेटाबेस में ढूंढ रहे हैं। तो हमने बोला सिलेक्ट करो, स्टैटिक का मतलब होता है ऑल ऑफ द थिंग्स, सब चीजों को, किधर से, यूजर्स वाले टेबल में से।
जहां पे जो टेबल के अंदर यूजर नेम लिखे हुए हैं वो हमारे दिए गए यूजर नेम के बराबर हों, या फिर ईमेल जो है टेबल के अंदर, जो डेटाबेस के अंदर है, वो हमारी दी गई ईमेल के बराबर हो, जो अभी अभी हमने दी है। तो अगर एक बंदा यहाँ पे लिखता है यूजर नेम अली और ईमेल के अंदर लिखता है ali@gmail.com, तो अगर इन दोनों में से कोई एक भी चीज डेटाबेस में पहले से मौजूद हुई, एक भी चीज, अली या ali@gmail.com, यूजर नेम या ईमेल, इन दोनों में से एक भी चीज अगर डेटाबेस में पहले से हुई ना सेव, तो हमें पता लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हम उसको सिलेक्ट करके ले आएंगे। जब हम उसको सिलेक्ट करके ले आएंगे तो सारा डेटा हमारा डॉलर रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। आ गया डेटा सारा। अब हम उसको काउंट करेंगे। काउंट कैसे करते हैं? MySQLi num rows, यानी नंबर ऑफ रोज के डॉलर रिजल्ट वाले वेरिएबल के अंदर चेक करो कितनी रोज मौजूद हैं, कितने, यानी कि टेबल में से कितनी रोज हमें वापस मिली हैं, तो उसको हम काउंट कर लेंगे। जब हम काउंट करेंगे तो हम क्या करेंगे? चेक करेंगे कि इफ काउंट इक्वल्स टू 0, यानी कि अगर वहां पे डेटाबेस में पहले से अली या ali@gmail.com जैसा यूजर मौजूद नहीं है, एक भी यूजर नहीं है, 0 काउंटिंग है, फिर तो हम ये कहेंगे कि हाँ ठीक है, चलो जी, ये बंदा चूंकि पहले डेटाबेस में मौजूद नहीं है, इसका डेटा सेव कर देते हैं। सेव कैसे करेंगे? सेव इस तरीके से करेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ अभी। वरना अगर तो वैसा एक भी यूजर डेटाबेस में मौजूद हुआ जिसका यूजर नेम अली हो या उसकी ईमेल ali@gmail.com हो, तो फिर हम क्या करेंगे? हम अब एक और काम करेंगे। हम इसको अब हम इसको भेज देंगे लोकेशन, एक और लोकेशन पे। अब ये हम जावास्क्रिप्ट चूंकि यूज कर रहे हैं, इसलिए ये थोड़ी सी कमांड चेंज हो गया। हम हेडर भी यूज कर सकते थे, लेकिन जावास्क्रिप्ट इसलिए इस्तेमाल किया ताकि थोड़ा सा आपको ये भी पता चल जाए। तो इसमें हम एको करेंगे, एको के अंदर ये स्क्रिप्ट का टैग लिखेंगे, उसके अंदर लिखेंगे location.href, और कहाँ पे भेजेंगे? index.php पे, लेकिन उसको बोलेंगे यू के तौर पे साथ वैल्यू 4 लेके जाओ, यू की वैल्यू 4 लेकर जाओ। तो उससे क्या होगा कि अगर यू की वैल्यू यहाँ पे 4 आएगी तो फिर हमें क्या एरर देखने को मिलेगा? अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, ट्राई विद डिफरेंट ईमेल स्लैश यूजर नेम। तो ये एरर हमें देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस बंदे का अकाउंट ऑलरेडी डेटाबेस में मौजूद है। तो ये तो तब होगा अगर वो पहले से डेटाबेस में मौजूद हुआ। अगर नहीं है, जो यूजर नेम और ईमेल हमने अभी प्रोवाइड किया है वैसा यूजर नेम और ईमेल अगर डेटाबेस में पहले से मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उसको सेव कर देंगे डेटाबेस में। कैसे सेव करेंगे? MySQLi क्यूरी लगाएंगे, पहले उसको कनेक्शन देंगे, उसके बाद इंसर्ट इनटू, यानी इंसर्ट का मतलब होता है सेव कर दो, इनटू टेबल के अंदर। कौन से टेबल में? यूजर्स वाले टेबल में। अच्छा, कौन कौन से कॉलम्स में? अब आगे हमने ब्रैकेट लगा के उसको कॉलम्स के नाम भी बताए हैं कि नाम वाला कॉलम, फिर कॉमा, सरनेम, कॉमा, यूजर नेम, कॉमा, पासवर्ड, कॉमा, ईमेल और कॉमा कंट्री। यानी ये सारे कॉलम्स हैं टेबल के अंदर। ये टेबल आपको मैं दिखा देता हूँ। ये टेबल है, ये हमारे पास टेबल है, और ये इसके अंदर देखिए नाम वाला कॉलम, सरनेम वाला कॉलम, यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल और कंट्री, ये सारे कॉलम्स हैं। तो हम उसे कह रहे हैं कि इन सारे कॉलम्स के अंदर डेटा सेव कर दो। लेकिन कौन सा डेटा? अब हम उसे वैल्यूज देंगे कि हाँ जी, कॉलम्स के नाम बता दिए, उसी तरतीब से, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, सेम तरतीब से अब हम उसे वैल्यूज भी देंगे। तो सेम तरतीब का मतलब है कि पहले हमने उसे कहा था कि नाम वाले कॉलम में डेटा डालना है, तो हम उसे $नेम प्रोवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि जो यूजर अभी फॉर्म फिल करके आया है उसका नाम हमने बजरिया पोस्ट मंगवा के $नेम के अंदर रखा था। इसी तरह $सरनेम, फिर $यूजर नेम, और इस तरह से उनकी हम वैल्यूज कॉमा लगा के देते जा रहे हैं। और ये चीज याद रहे कि ये जो वेरिएबल्स हैं इनको हमने सिंगल कोटेशन के अंदर लिखना है। ठीक है, ये एक फॉर्मेट होता है लिखने का, और दैट्स इट। अगर तो ये चीज चल गई तो ठीक है, और वरना डाई का मतलब होता है एरर शो करा दो। क्या एरर? MySQLi एरर, MySQLi एरर आ जाएगा, और $कॉन उसको इसलिए हम दे रहे हैं कि डेटाबेस के साथ कनेक्शन बना सकें। तो जो भी एरर आया वो हमें शो हो जाएगा। और अगर ये सारा काम सही तरीके से हो जाता है तो हम वापस किस सेफ पे चले जाएंगे? index.php पे हम वापस चले जाएंगे, लेकिन अब की बार यू की वैल्यू 1 लेकर जाएंगे। और यू की वैल्यू अगर 1 जाती है तो हमें क्या शो होगा? सक्सेस, अकाउंट रजिस्टर्ड। तो ये हमारे पास पूरा इसका वर्किंग था कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन वाला पेज जो है वो काम करता है, किस तरह उसका डेटा इस सफ़े पे आता है, और उसको आगे हम चेक करके फिर डेटाबेस के अंदर सेव कर रहे हैं। तो ये तो आपका रजिस्ट्रेशन का पेज हो गया। अब आते हैं लॉगिन पेज पे। ये लॉगिन पेज आ गया। अब ये लॉगिन पेज है। अब इस लॉगिन पेज पे जितने भी यूजर्स हमने बना लिए हैं उन सबको हमने लॉगिन करा के चेक कराना है। एक यूजर को चेक करा लें या सारों को, वो आपकी मर्जी है। मकसद ये है कि वो लॉगिन होने चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने एक यूजर बनाया था m.ali और पासवर्ड रखा था 123। उससे हम लॉगिन करते हैं।
m.ali, पासवर्ड है 1 2 3। लॉग इन करते हैं तो ये देखें यू आर लॉग्ड इन, ये बंदा लॉग इन हो चुका है। ये हमारी बस इतनी सी रिक्वायरमेंट थी इस टेस्ट फेज की, ठीक है। तो ये बंदा लॉग इन हो चुका है। अब यहाँ पे हम लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो वापस रजिस्ट्रेशन पेज पे चले जाएंगे और लॉग इन वाले पेज पे जाएंगे तो फिर से लॉग इन कर सकते हैं। अब ये पेज कैसे काम कर रहा है, सबसे पहले तो आप ये देख लें कि इस सफ़े का कोड कौन सा है। तो इस सफ़े को जब हम ओपन करते हैं तो URL के अंदर लिखा हुआ आता है login.php। तो हम अपने कोड में जाएंगे, वहाँ पे login.php वाला कोड ओपन करेंगे तो ये देखें ये कोड हमें यहाँ पे शो हो गया। अब इसके अंदर भी ये ऊपर वाली चीज़ें जितनी भी हैं वो सेम है, यानी कि जो हेडर है हमारा उसके अंदर ये CSS की फाइल्स और वो सारा ये सब कुछ सेम है जो कि रजिस्ट्रेशन पेज पे था। तो इसको आपने इतनी तवज्जो फिलहाल नहीं देनी। नेविगेशन बार भी आपकी बिल्कुल सेम है, यानी कि ये जो ऊपर होती है ये भी बिल्कुल सेम है, इस पर भी तवज्जो नहीं देनी, ठीक है। नीचे अलबत्ता ये थोड़ा सा सेक्शन आ गया जो वेलकम वाला, वो भी सेम है, वेलकम भी लिखा हुआ आ रहा है। फॉर्म भी बिल्कुल सेम है, यहाँ पे फॉर्म भी शुरू हो रहा है, ये देखिए फॉर्म भी है, लॉगिन फॉर्म भी लिखा हुआ आ रहा है। उधर रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा हुआ था, इसमें लॉगिन आ रहा है। उसमें बहुत सारे डब्बे थे, इसके अंदर 2 डब्बे हैं, फर्क कितना है। अब इन 2 डब्बों के जरिए से भी वही बात है कि डेटा हम लिखेंगे और नीचे हमारा ये बटन लिखा हुआ आ रहा है, ये लॉगिन का बटन है हमारे पास और इसका नाम लॉगिन है। अब जब इस फॉर्म को हम पोस्ट करेंगे तो इसका डेटा किधर जाएगा, वो हम इस फॉर्म की लाइन के अंदर देख लेते हैं। ये फॉर्म का टैग है, इसको भी हमने मेथड बताया पोस्ट, इसको एक्शन बताया है लॉगिन क्लास डॉट php कि तुमने डेटा को किस जगह भेजना है, लॉगिन क्लास पे। तो लॉगिन क्लास वाला कोड ये लेफ्ट साइड पे आप देखें तो यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको सिंगल क्लिक करें, ओपन करें, छोटा सा कोड है 4-5 लाइनों का। तो इधर हम क्या कर रहे हैं, पहला काम इधर भी वही है, डेटाबेस की फाइल इंक्लूड कराई। फिर अगला काम क्या है, ये जो 2 डब्बे थे इन दोनों डब्बों से कोई ना कोई तो डेटा में आएगा ना, इसमें यूजर कुछ ना कुछ तो लिखेगा। तो जो भी डेटा आएगा बाय पोस्ट उसको हम अलग करके इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर लेंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या लॉगिन का बटन प्रेस भी हुआ है कि नहीं हुआ। ये याद रखिए, ये जो इज सेट होता है ना, इसका मतलब होता है चेक करो। तो ये चेक करेंगे कि क्या लॉगिन बाय पोस्ट लॉगिन वाला बटन जो है वो प्रेस हुआ है कि नहीं हुआ। अगर तो हुआ है फिर हम क्या करेंगे, सिंपल क्यूरी लगाएंगे जैसे हमने रजिस्ट्रेशन पेज पे लगाई थी चेक करने के लिए कि सिलेक्ट करो ऑल थिंग्स फ्रॉम यूजर्स, जहाँ पे यूजर नेम बराबर हो इस यूजर नेम के और अच्छा यहाँ पे अब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, ईमेल यहाँ पे हम नहीं कहते बल्कि हम यहाँ पे कहते हैं एंड पासवर्ड बराबर हो डॉलर पासवर्ड के, क्योंकि अब हमने यूजर नेम और पासवर्ड चेक करना है ना। तो हमने ये चीज उसको बोल दी कि ये जो दोनों चीजें हमारे पास आई हैं ये चेक करो टेबल में डेटाबेस में मौजूद हैं या नहीं है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ रोज काउंट करेंगे कि डॉलर रिजल्ट में कितने यूजर्स का डेटा आया है, क्योंकि जो यूजर नेम और पासवर्ड मैंने प्रोवाइड किया है ना वैसा एक भी यूजर अगर हुआ, अगर काउंटिंग इक्वल टू 1 हुई तो हम क्या करेंगे, सेशन स्टार्ट कर देंगे। सेशन स्टार्ट का मतलब ये होता है कि हमारे पास वो जो बंदा है वो लॉगिन हो जाएगा। तो बंदा लॉगिन हो गया, सेशन स्टार्ट का मतलब ये होता है कि इस वक्त उसको अलाउ है कि वो लॉगिन रहे और हम जैसे हर बंदे का एक आईडी कार्ड बन जाता है तो हम उस बंदे का एक सेशन बना रहे हैं और सेशन बना के जरिए बात है उसको एक आईडी नंबर भी असाइन करेंगे और उसकी आईडी नंबर में हम उसका अपना ही जो नाम था वही दे रहे हैं कि जो बंदा इस वक्त लॉगिन हुआ है उसका जो भी यूजर नेम था वही उसकी आईडी है। ये हमने छोटा सा काम इसलिए किया है ताकि हम आगे जाके चेकिंग कर सकें कि कौन सा बंदा लॉगिन है और तब फिर हम जो है वो लॉगिन वाला पेज शो कराएं, अदरवाइज नहीं कराएंगे, ठीक है। तो जब ये बंदा लॉगिन हो जाएगा तो उसको हम किस सफ़े पे भेजेंगे, welcome.php पे, और u की वैल्यू भेजेंगे 5, ठीक है। तो जैसे ये लॉगिन होगा और लॉगिन होने के बाद जाएगा तो ये देखिए हम welcome.php पे आ गए और u की वैल्यू क्या है 5। तो दैट्स इट, ये हमारे पास लॉगिन शो हो रहा है। अच्छा, इसका अब ये सेशन वाला कौन सा मसला है, देखिए अगर हम लॉग आउट करते हैं और खुद यहाँ पे मैनुअली लिख देते हैं welcome.php $u equal to 5 तो फिर भी वो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि अभी उसका सेशन एक्सपायर हो चुका है। देखिए ये लिखा हुआ आ गया सेशन एक्सपायर। अच्छा, ये सेशन एक्सपायर कहाँ पे लिखा हुआ आएगा, ये देखिए वेलकम वाला पेज पे हम जाते हैं फिर आपको समझ आएगी। ये वेलकम वाले पेज पे गए, इस पे बाकी सारी चीज़ें सेम है तो वो हम यहाँ पे नहीं देखते। ये हेडर में जितनी CSS की फाइल्स हैं वो सारी बिल्कुल सेम है जैसे बाकी सफ़ों में थी। नेव हमारे पास नेविगेशन बार यानी कि वो भी सेम है। नीचे ये देखें ये PHP का थोड़ा सा कोड है। इधर हम चेकिंग कर रहे हैं, क्या चेकिंग कर रहे हैं, सेशन स्टार्ट किया पहले तो, फिर हमने चेक किया कि अगर तो सेशन आईडी नॉट इक्वल टू नल, सेशन आईडी अगर खाली नहीं है यानी सेशन आईडी में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, फिर हम उसे कह रहे हैं कि लिखा हुआ आ जाए यू आर लॉग इन, फिर तो ये लिखा हुआ आ जाए। लेकिन अगर सेशन आईडी नल है यानी सेशन आईडी में कोई चीज है ही नहीं, बंदा लॉग इन हुआ ही नहीं है,
تو ہم اسے واپس کس صفحے پہ بھیج دیں گے؟ index.php پہ، اور لکھا ہوا کیا آئے گا؟ سیشن ایکسپائرڈ. یہ کوڈ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، اور دیٹس اٹ، نیچے کوڈ ختم ہے، نیچے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ہمارے پاس جناب کوڈ تھا اس کا. دوبارہ لاگ ان کر کے چیک کر لیتے ہیں m.ali and 1 2 3. ٹھیک ہے، یہ لاگ ان ہو رہا ہے. لاگ آؤٹ کریں گے، واپس اس صفحے پہ آپ آ جاتے ہیں. آپ اس کو چاہیں تو واپس لاگ ان صفحے پہ بھی بھیج سکتے ہیں. جیسے اگر ہم لاگ آؤٹ پہ کلک کریں تو ہم ابھی کدھر جا رہے ہیں؟ انڈیکس پہ جا رہے ہیں. اب میں اس کو چاہیں تو لاگ ان پہ بھی بھیج سکتے ہیں. وہ کس طرح سے بھیج سکتے ہیں؟ دیکھیں، لاگ ان کریں m.ali 1 2 3. دیکھیں آپ کس صفحے پہ موجود ہیں اس وقت؟ آپ اس وقت موجود ہیں ویلکم والے پیج پہ. تو آپ ویلکم والے پیج کا کوڈ اوپن کر لیں. یہ ویلکم والا پیج آ گیا. اب دیکھیں یہ آپ کے پاس جو لاگ آؤٹ کا بٹن ہے یہ نیویگیشن بار میں ہے. آپ نیویگیشن بار میں چلے جائیں جو کہ یہ ہے. اب نیویگیشن بار کے اندر دیکھیں لاگ آؤٹ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ لاگ آؤٹ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، لاگ آؤٹ نظر آ گیا. اب لاگ آؤٹ کے پیچھے کوڈ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس نے کس صفحے پہ لے کے جانا ہے. ابھی یہ انڈیکس پہ لے کے جا رہا ہے، آپ اس کو کسی اور صفحے پہ لے جائیں، مثال لاگ ان پہ لے جائیں، لاگ ان ڈاٹ پی ایچ پی پہ لے کے جائیں گے. ابھی دیکھیے، ابھی میں اس کو اگر ریفریش کرتا ہوں اور اب میں اس کو لاگ آؤٹ پریس کرتا ہوں تو یہ لاگ ان پہ لے آیا مجھے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں. صفحے کا ایڈریس آپ خود بخود بھی چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس کا کوڈ تھا ٹیسٹ فیز کا. یہ آپ کو میں ریکارڈنگ ابھی بس کچھ دیر میں سینڈ کر دیتا ہوں. آپ اس کو ترتیب سے دیکھیں، تسلی سے دیکھیں. اپنا کوڈ سب سے پہلے تو کنفیگر کریں. کنفیگر کر کے مجھے آپ نے میسج کر دینا ہے واٹس ایپ پہ کہ آپ نے اپنا کوڈ کنفیگر کر لیا ہے. اس کے بعد آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. ایچ اینڈ ایوری لائن آف کوڈ کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے. جہاں سے نہ سمجھ آئے مجھ سے لازمی پوچھنا ہے. اور اپنی وی یو والی ای میل ایڈریس کو ڈیلی چیک کرنا ہے، بلا ناغہ، صبح اور شام لازمی چیک کرنا ہے، کیونکہ آپ کے ٹیسٹ فیز کی ڈیٹ اسی پہ آئے گی اور کہیں پہ بھی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے لازمی بات یاد رکھنی ہے. اس پہ کوئی آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا. ڈیلی اپنی ویڈیو والی ای میل آپ نے چیک کرنی ہے اور اپنا کوڈ سب سے پہلے آج کی ڈیٹ میں یا میکسیمم کل تک کنفیگر بھی کر لینا ہے. اور کوئی بھی سوال ہو مجھ سے لازمی پوچھ لینا ہے. ٹھیک ہے جی، اوکے، اللہ حافظ.